राम कबीर। गुरु वचन को रखना संभल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक जगे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल न भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। ठोकर लगे और गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे तू हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। वो तो हर पल होता आभास है, गुरु सदा ही हमारे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचन को रखना संभल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। राम कबीर। राम कबीर प्रीतिबेन, थैंक यू वेरी मच। તમે બહુ સુંદર ગુરુ પ્રત્યેના જે મહત્વ બતાવતા શબ્દો દ્વારા રચાયેલી આ પ્રાર્થના અમને અત્યંત આનંદ અને અત્યંત આમ રવિવારના મૂડમાં લાવી દીધા છે. થેન્ક યુ અગેન. થેન્ક યુ. રામ કબીર સર્વ ભક્તજનોને શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ યુએસએ અને શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ સાઉથર્ન કેલિફોર્નિયા દ્વારા આપણા બધા માટે જે લાભદાયક અને આપણા બધાને એક ભેગું કરતું સ્ટેજ, જેને આપણે કબીર વિઝડમ કહીએ છીએ, કબીર વિઝડમ પર રવિવારે તમારા બધાનું સ્વાગત છે. આ એક એવો વિસામો છે કે જ્યાં આપણે આપણી આધ્યાત્મિકતાની ભૂખ પ્યાસ
મટાવી આપણે ભક્ત તરીકે આપણી પોતાની જ્ઞાનની જે વધારે ને વધારે પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાઓ છે અને આધ્યાત્મિકતા જે પ્રમાણે આપણે આગળ ને આગળ વર્તીએ એ પ્રમાણે આપણી જે ઈચ્છાઓ છે એ ઈચ્છાઓ આજે સંતોષાય અને એનાથી આપણે આધ્યાત્મિકના દર પ્રગતિમાં જ રહીએ, પગથિયું ધીમે 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 પગથિયા ચડતા રહીએ, એવો આપણો એક સામૂહિક પ્રયાસ કે જેને આપણે કબીર વિઝડમ કહીએ છીએ. અને આપણાને બધાને ખબર છે એ પ્રમાણે કબીર વિઝડમ આપણે જે કરીએ છીએ એ કબીર વિઝડમ નો સેશન એવરી સન્ડે, અને એ તમે ઝૂમ પર જોડાઈ શકો છો, તમે ફેસબુક લાઈવ પણ જોઈ શકો છો, અને સમય મળીએ તમે યુટ્યુબ પર પણ જોઈ શકો છો, કારણ કે યુટ્યુબ પર પણ આપણી ચેનલ છે કબીર વિઝડમની, અને એમાં તમે સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને જેથી આપણે સારું ને સારું એડવર્ટાઇઝ ફ્રી પ્રોગ્રામ જોઈ શકીએ. હવે આજનું આપણે જે પ્રમાણે ઘણા વખતથી આપણે વેઇટ કરતા હતા અને જે આપણા ગુરુ તરીકે આપણને બહુ સુંદર આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપે છે, આપણા કબીરજીના સંદેશની એકદમ નજીક લઈ જાય છે, એવા ગુરુ આપણાને ઇન્ડિયાથી, ભારત દેશથી આપણાને સર્વ ઘણી વાર સેવા આપી ચૂક્યા છે. આજે એમના અને આપણા સત્કર્મથી એઓના પગલા આજે અમેરિકામાં લોસ એન્જલિસ ખાતે આવી ગયા છે, અને એમનો આપણે એકદમ નજીકતાનો આપણે આપણા જ દેશની અંદર એમને એક અનુભવ કરી શકીએ છીએ. એમની સાત્વિકતાનો આપણાને પ્રકાશ દેખાય છે. તો એવા પ્રકાશિત પુરુષ, એવા જે સદગુરુ જેની આપણે આગળ પણ ઘણીવાર વાતો કરી છે કે એમની સિદ્ધિ એમની ખાલી 4 વર્ષની ઉંમરે આગલા જન્મોનું ઘણું બધું ભેગું કરી લાવીને જ્યારે એઓ આપણી સાથે જોડાયા અને એ 4 વર્ષની ઉંમરથી સંન્યાસ લીધો, એ સંન્યાસ નું જે જ્ઞાન, ત્યારથી ભક્તિ ભાવ રિલિજિયસમાં એટલા બધા એક્ટિવ, અને એ ભક્તિ ભાવનું પ્રવચન 4 વર્ષની ઉંમરથી કરતા હતા. એ એમના જીવન દરમિયાન અને આગલા જન્મોના જે જ્ઞાનનો ભંડાર એમની પાસે છે એ લઈને ત્યારથી સામાજિક સેવા કરે છે. આમ આપણે જોયું છે તે પ્રમાણે એઓ ભગવત કથા પણ કરે છે, કબીર કથા કરે છે, મીરાબાઈની કથા કરે છે. આપણા યોગ વિશે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયું તેમ માયા વિશે પણ એમને બહુ સુંદર આપણને જ્ઞાન આપ્યું. એવી જ રીતે એમને ગુરુજીનું થોડું વધારે તમને ઓળખાણ આપું એ પ્રથમ પ્રીતિબેન આવે છે ગુરુજી? He is here. ઓકે ઓકે, સો તો હું અમને ગુરુજીને બોલાવું છું સ્ક્રીન પર, અને જીતુભાઈ હું જોઈ નથી શકતો. ઓકે, રામ કબીર નમસ્કાર, પ્રણામ एंड वेलकम टू लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया. Thank you so much. आपका वो नजदीकी जो भी अनुभव हो रहा है हमें बहुत अच्छा हो रहा है. मैं आपको देख नहीं पा रहा था स्क्रीन पे ना, इसीलिए मैं थोड़ा आपके बारे में बता रहा था. जैसे सभी लोग तो जानते ही है कि आप तो अभी हमारे अपने हो गए हैं, तो इससे कुछ तो आज हम जब भी आप नजदीक है हमारे, तो हमें कुछ ऐसा जानना है कि आप कुछ ऐसा बताइए हमें कि जैसे ना हमने सब्जेक्ट आज भी रखा हुआ है, लेट्स बी द चेंज, लेट्स बी द स्पिरिचुअल. सो इस स्पिरिचुअल हमें हमें क्या करना है, उसमें कैसे करना है और कैसे प्रगति करना है, तो बस आप हमें ये बताइए आज, और इससे आज आप हम हमारा फाउंडेशन चालू करके आगे ले जाइए. राम कबीर, अभी मेरे जितने भी सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को, जो धर्म को जानने के इच्छुक हैं, और हर वक्त जिनके हृदय में यही कामना रहती है, यही इच्छा रहती है कि मैं बदलूं और मेरी आत्मा जो है उस परमात्मा की शरणागति को प्राप्त हो जाए, इस उद्देश्य से हमारे इस अमेरिका के अंदर सुदूर भारत से रहते हुए मेरे जितने भी
प्रेमी जन है, नेमी जन है, हृदय से मैं उन सभी को इसलिए भी प्रेम करता हूँ क्योंकि उनमें कुछ न कुछ नया जानने की इच्छा है, कुछ नया प्राप्त करने की इच्छा है। और मैं आपको बता दूं मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, आपके अंदर की उस जानने की इच्छा को देखकर, आप लोगों के अंदर उस जिज्ञासा को देखकर मैं भारत से इतना दूर चल कर के यहाँ आता हूँ। कितना भी बिजी शेड्यूल होता है, कुछ भी वहां पर 100 प्रकार के प्रकल्प चल रहे हैं, उन सभी प्रकल्पों को अपनी गति में छोड़ करके मैं वहां से चल के यहाँ आता हूँ, क्योंकि एक गुरु के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक साधु के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता और कुछ नहीं हो सकती कि उनके विचारों पर, उनके वैचारिक पथ पर चलने वाले, जो पथ पर चलने वाले यात्री हैं, वो सहयात्री बनकर के उस एक विचार की ओर आगे बढ़ने की इच्छा जाहिर करें। और आप सभी वही लोग हैं जो उस एक पथ पर चलने के इच्छुक हैं, उस परम आनंद को प्राप्त करने के इच्छुक हैं। और रही बात आध्यात्म को जानने की, तो मैं हमेशा कहता हूं, अब तो अधिकार पूर्वक आप लोग भी कहते हैं कि आप मेरे हैं। ये जो मेरा भाव है, अधिकार से है, निष्काम है और निष्पक्ष है, तब तक तो ये आध्यात्म के मार्ग में हमें सहयोग देगा। लेकिन जब इस मेरे भाव में, जब इस अपनेपन वाले भाव में स्वार्थ आ जाएगा, कामना आ जाएगी, प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी, और वो इच्छा भी इस लौकिक जगत की वस्तुओं से जुड़ी होगी, तो ये समझ लेना कि आध्यात्म का मार्ग फिर बहुत कठिन है। हम सब एक ही उद्देश्य को लेकर के निकले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप सभी लोग मुझ पर अधिकार रख करके मुझसे ये कामना करते हैं कि आध्यात्म के इस पथ पर, आध्यात्म के इस मार्ग पर आप ये कामना करते हैं कि मैं आप सभी का हाथ पकड़ के आप लोगों को साथ लेके चलूं। और ये भाव मेरे मन में भी है, मैं आप लोगों को हृदय से बता दूं, मेरे सच्चे दिल की बात बता दूं। मुझे भी अच्छा लगता है भारत से इतना दूर चल के आना, आप सबका साथी बनना, सहयोगी बनना, एक गुरु के भांति नहीं, एक सहयोगी की भांति, एक साथी के भांति, एक मित्र की तरह आप लोगों का मैं साथी बनूं, आपके साथ चल पाऊं। क्योंकि इस अपनेपन के साथ अब एक शब्द हमें जोड़ना होगा, वो है आनंद। जहां आनंद नहीं, वहां आध्यात्म नहीं। जहां आनंद नहीं, वहां पर चेतना को परम स्थिति नहीं। जहां आनंद नहीं, वहां आत्मा का परमात्मा के बीच में कोई संबंध नहीं, साक्षात्कार नहीं। कहां खो गया हमारा वो आनंद? कहां चला गया वो आनंद? क्या वो आनंद सिर्फ दिखावटी नहीं रह गया? क्या आनंद सिर्फ और सिर्फ स्वयं को ही यह महसूस करवाने के लिए कि मैं आनंद में जी रहा हूं, उस झूठे बहरूपिये का नाम आनंद तो नहीं हो गया? उस ढोंग का नाम आनंद तो नहीं हो गया जो हम दुनिया के सामने कर रहे हैं? उस नाटक का नाम आनंद तो नहीं रह गया जो हम खुद को और अपने आसपास में चल रहे उन सारे लोगों को रिझाने के लिए प्रयोग में ले रहे हैं? आनंद की गति बदल गई है, आनंद का स्वरूप बदल गया है। जहां पर कबीर साहब तो ये कहते थे कि जहां मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जो मरने सब तक से नहीं डरते थे, वो तो उस मरने को भी आनंद के रूप में देखते थे। क्या हम लोगों ने उस आनंद की परिभाषा को गलत तो नहीं कर दिया? क्या हमने उस आनंद की परिभाषा को गलत दिशा में तो नहीं ले गए? इसका चिंतन करना बहुत आवश्यक है। अब मैं आया हूं तो हमें अगले 15-20 दिनों तक सिर्फ कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर हम इसी आनंद के असल रूप को जानने का कार्य करेंगे। ये आनंद मूल है आध्यात्म के मार्ग का, इस आनंद को बनाए रखना, क्योंकि यही तो लक्ष्य है आध्यात्म का, यही तो लक्ष्य है इन सारी धार्मिक गतिविधियों का, यही तो लक्ष्य है इस जूम मीटिंग का, यही तो लक्ष्य है हम सबके आपस में जुड़ने का, यही तो लक्ष्य है हर वीकेंड पर गेट टुगेदर करने का, यही तो लक्ष्य है हर वीकेंड पर इस तरह की धार्मिक चर्चा करके उस आनंद के रहस्य को जानने का। यही तो लक्ष्य है हमारा। इसलिए तो हम लोग आपस में जुड़े हैं। कोई कहां से आया है, कोई कहां से आया है, कोई कहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पटेल है और पटेल से पटेल मिलेगा तो ही आनंद है।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भक्त है, वो भक्त भक्त से मिलेगा तो ही आनंद बढ़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पंजाब से आया है, वो राजस्थान से आया है, वो महाराष्ट्र से आया है, वो मध्य प्रदेश से आया है, या वो यूरोप से आया है, इंग्लैंड से आया है, कोई गोरा है या काला है, कोई कोई भूरा है या सफेद है। न रंग से फर्क पड़ता है, न व्यवस्था से फर्क पड़ता है, न जाति से फर्क पड़ता है, न समुदाय से फर्क पड़ता है, न स्थान से फर्क पड़ता है, न स्थिति से फर्क पड़ता है। ध्यान रखिएगा, आनंद जाति पूछ करके, चेहरे का रंग देख करके, वस्त्र देख करके, या फिर क्षेत्र देख करके कि कहां से आया है, आनंद वहां से नहीं निकलता। आनंद निकलता है अंदर से। वो आनंद आपको आंतरिक सुख की अनुभूति कराएगा। वो आनंद अंदर से निकलेगा जब आपका चित्त, बुद्धि, मन, ये सब जो है पवित्र हो जाएंगे, विषयों से मुक्त हो जाएंगे, इन बाहरी मलिनता से बाहर निकल जाएंगे, इस जगत की भौतिकता से बाहर निकल जाएंगे। ये आनंद वहां से शुरू होगा। ये हमारी आंखें अच्छा दिखने पर भी प्रसन्न नहीं होगी और बुरा दिखने पर शोक नहीं मनाएगी। आनंद तब बना रहेगा। ये हमारी जिह्वा स्वादिष्ट भोजन मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न न होगी और कड़वा भोजन मिलने पर शोक नहीं मनाएगी। आनंद वहां से होगा। ये कान अच्छा सुनाई देने पर किलोल नहीं करेंगे और बुरा सुनाई देने पर दुख प्रकट नहीं करेंगे। समभाव बने रहेंगे। आनंद तब बना रहेगा। ये स्पर्श, अच्छे स्पर्श पर अधिक उत्तेजित नहीं होंगे और बुरे स्पर्श पर घिन्न पैदा नहीं करेंगे। आनंद बना रहेगा। ये नाक अच्छी सुगंध मिलने पर उसके प्रति आकर्षित नहीं होगा और किसी बुरी गंध के कारण उस जगह के प्रति अपना आकर्षण खत्म नहीं करेगा। तब आनंद बना रहेगा। चाहे ये भौतिक पंच विषय हो और चाहे इन विषयों से बाहर की स्थिति हो, इन सब में एक जैसा बना रहना ही तो आनंद है। हम सब उसी आनंद को तो प्राप्त करना चाहते हैं और वो आनंद इस आध्यात्म का भी लक्ष्य है। तो आध्यात्म को प्राप्त करना भी आनंद से है और आध्यात्म के लक्ष्य की पूर्ति भी आनंद में ही है। बस आनंद को बनाए रखो, स्वयं के स्वरूप का अनुसंधान करते रहो, जानते रहो कि आप कौन हैं। हर बार, हर परिस्थिति में आपको पता है कि आप मनुष्य हैं। आप उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए आए हैं जो मनुष्य योनि में ही प्राप्त हो सकती है। ये बात बार बार जानते हुए भी इसका बार बार चिंतन करना आवश्यक है, क्योंकि हम इस माया के अंदर हैं। हम चारों तरफ इस भयंकर मायावी माया के अंदर है जो बार बार हमें भुलाने के लिए तैयार कर रही है, बार बार हमें भुलाना चाहती है कि हम कौन हैं। जिस घर में हम बैठे हैं, जिस सोफे पर हम बैठे हैं, जिस जिस यंत्र का हम उपयोग करके आपस में संवाद कर रहे हैं, जिन लोगों के सानिध्य में हम बैठे हैं, हो सकता है कि ये सब मायावी प्रभाव से हमें ये भुलाना चाहे कि हम कौन। कहीं इस फोन की माया में, इस सोफे की माया में, इस घर की आभा में, इस जगत की माया में मैं इस अहंकार में तो नहीं हूं कि मैं ही हूं, मैं ही स्वामी अभयदास हूं जो आप सब लोगों को उस मार्ग पर ले जा सकता हूं। क्या इस अहंकार में मैं अपने अंदर के आनंद को तो खराब नहीं कर रहा? क्या सुनने वाले आप तमाम श्रोता कि हम हैं जो आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए इतने उत्सुक हैं, हम हैं जो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए इतने लालायित हैं, हम हैं जो धर्म की असली अर्थ को जानने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और कोई पटेल नहीं कर रहा, और कोई भक्त नहीं कर रहा, और कोई गुजराती नहीं कर रहा, और कोई भारतीय नहीं कर रहा, सिर्फ ये श्रोता जो हम सुन रहे हैं। कहीं हम इस अहंकार में उस आनंद को तो खराब नहीं कर रहे, आध्यात्म के उस मार्ग से हट तो नहीं रहे। यह मूल है इस आनंद को बनाए रखना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन सारी व्यवस्थाओं को हम अपने से छूने तक न दें। यही तो है आनंद की परम स्थिति। यही तो हमें बनाएगी समभाव और समदृष्टि। यही तो हमें ले जाएगी आध्यात्म की ओर।
मैंने कहा आपको, फिर से मेरी बात को नोट कर लीजिए। अगर आप लोग जब भी मुझे सुनते हैं तो पेन और पेपर लेकर के बैठिए और नोट करिए। आध्यात्म जिसके मूल में आनंद है, आनंद से ही आध्यात्म की शुरुआत होती है और आध्यात्म का लक्ष्य भी आनंद ही है। बिना आनंद आध्यात्म मार्ग पर टिके रहना मुश्किल है। तो आध्यात्म मार्ग में बने रहने के लिए जिसकी आवश्यकता है वो भी आनंद है। ये वैसा ही है जैसा इस शरीर में आत्मा का होना है। इस शरीर का होना, इस शरीर का सारा संचालन, शरीर की सारी प्रक्रिया, इस शरीर में जो कुछ भी मशीनरी काम कर रही है वो इस आत्मा के स्पंदन से हो रहा है, इस आत्मा के धड़कने से हो रहा है, इस आत्मा के धड़कने से हो रहा है, इस दिल के, इस हृदय के धड़कने से हो रहा है। शुरुआत भी आत्मा से है और इस शरीर का अंतिम लक्ष्य क्या है कि आत्मा को शरीर में बनाए रखना। अर्थात आनंद से ही आध्यात्म की स्तुति स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, और आध्यात्म का लक्ष्य भी आनंद को बनाए रखना है। बिना आनंद की प्राप्ति आध्यात्म शुरू नहीं होता और आध्यात्म का लक्ष्य भी यही है कि आनंद सदैव जो प्रारंभ हुआ वो बना रहे। मैं तो बस आनंद बिखेरने के लिए आया हूं। आई कम हियर टू स्प्रेड जॉय, नथिंग एल्स। मैं कुछ मांगने या कुछ लेने या कुछ देने नहीं आया। मैं सिर्फ इतना आप तक साझा करने के लिए आया हूं। आई एम हियर टू शेयर यू। आई एम नॉट हियर टू वॉन्ट समथिंग and to give something. No, I'm here only to spread and share my experiences. That is, joy is the root of spirituality, and it is also target to maintain this joy till our last breath. यही तो हमारा लक्ष्य है। बस इसको बनाए रखो। अभी तो यात्रा फिर शुरू हुई है। मैं हर बार आपको कहता हूं, मुझसे बिल्कुल अपेक्षा मत करो कि मैं किसी गुरु की भांति सिर्फ एक की बात करूंगा। मैं लक्ष्य तो एक ही बनाऊंगा, लेकिन बात खुली करूंगा, सच्ची करूंगा, साफ सुथरी करूंगा, क्योंकि मैं यहां पर किसी व्यक्तिगत भौतिक उद्देश्य से नहीं आता। मुझे मन में कभी किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। अभी हाल ही में इंस्टाग्राम के माध्यम से आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन बताता हूँ। अभी हाल ही में भारत के अंदर इंस्टाग्राम के अंदर मेरा किसी ने इंटरव्यू लिया और उसमें मैंने उनको एक बात कही कि मेरी सत्संग, मेरा प्रवचन, मेरी कथा बिकाऊ नहीं है। जब ये बात मैंने कही तो आज भारत में वो वीडियो वायरल हो रखा है, इस पर विवाद छिड़ रखा है। कई लोग मेरे पक्ष में हैं, कई लोग मेरे विरोध में हैं। वो आश्चर्य कर रहे हैं कि 2024 के अंदर कोई ऐसा साधु कैसे कह सकता है कि उनकी कथा का कोई चार्ज नहीं, वो मुफ्त में कथा करते हैं, वो 1 रुपया नहीं लेते। ये संभव ही नहीं है। बिना रुपयों के वो अमेरिका महाराज कैसे जा रहे हैं? बिना रुपयों के वो महाराज यूरोप कैसे जा रहे हैं? बिना रुपयों के वो महाराज भारत से बाहर कैसे जा रहे हैं? ये सब ढोंग है। अभयदास जी महाराज 1 नंबर के ढोंगी है, इस तरह से मुझे कहा जा रहा है। और आपको पता है, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं, मेरा आनंद बना हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे मेरे साथ रहने वाले जानते हैं। आप सब लोग जो मुझसे इतने सालों से बातचीत कर रहे हैं, आप लोग भी मुझे जानते हैं। मैंने साधुत्व और मैंने सन्यास आनंद के लिए लिया, आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए लिया, आध्यात्म की परम स्थिति को प्राप्त करने के लिए लिया, अपने अंतिम सत्य को जानने के लिए लिया, उस सत्य पर टिके रहने के लिए लिया। धन के लिए, वैभव के लिए, व्यवस्था के लिए नहीं लिया। और आज भी मैं गर्व से कहता हूं कि मैं और मुझसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति दावा कर सकता है, हिम भाई, प्रफुल्ल भाई, राजू भाई, प्रीति बहन, मुकेश भाई, गिरीश भाई, हमारे जितने श्रोता अभी जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता, मैं देख नहीं पा रहा कितने, लेकिन जितने लोग जुड़े हुए हैं, बीना बहन वगैरह, सभी दावे के साथ कह सकती है कि अभयदास जी बापू जो है, हमसे आज तक 1 रुपया न तो उन्होंने मांगा, न वो कभी रुपयों के लिए अमेरिका आते हैं। और मैं आज भी कहता हूं, हमेशा कहता रहूंगा, धन हमारा उद्देश्य कभी नहीं।
और होना भी नहीं चाहिए। अगर जिस दिन में धन मेरा उद्देश्य हो जाएगा, आप नोट कर लो, पेन कॉपी से मैंने दूसरी बातें नोट करवाई, ये भी नोट कर लो। न तो मुझे जूम पे बुलाने की जरूरत है और न अमेरिका आने पर मुझसे मिलने की आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने खुद के लक्ष्य पे नहीं चल सकता, वो आपको लक्ष्य पर कैसे साध सकता है। तो ये खुला चैलेंज है, आप मुझे त्यागें, मेरी बातें सुनना बंद करें, मेरा नंबर ब्लॉक डाल दें। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बात पर टिका नहीं। जो मैं अपनी बात पे नहीं टिक सकता, तो आपको क्या टिकाऊंगा। तो अभी तक तो मैं ईश्वर की कृपा से इस माया से बचा हुआ हूँ। हाँ, माया के अंदर हूँ। ये वस्त्र भी माया है, ये टीका, चंदन, बालों में लगा हुआ तेल, सब कुछ माया है। लेकिन माया के अंदर रहता हुआ भी माया से बाहर हूं, क्योंकि मैं इस माया के अधीन नहीं, माया के साथ हूं। सब कुछ माया है। माया के माध्यम से ही हम लोग जुड़े हुए हैं आपस में। अभी वीडियो कॉल, ये कॉन्फ्रेंस चल रही है, वेबिनार चल रहा है, लेकिन मैं इस माया के अधीन नहीं कि ये वेबिनार मेरा जीवन डिसाइड करेगा। नहीं। क्या इस सोफे पे बैठा हूं तो ही मैं बैठ पाऊंगा? मैं नीचे भी बैठ सकता हूँ। क्या ये वस्त्र होंगे तो ही मैं साधु कहलाऊंगा? मैं बिना वस्त्रों के भी साधु ही कहलाऊंगा। तो माया के साथ हूं, लेकिन माया के अधीन नहीं। माया ने मुझे कैप्चर नहीं कर रखा, माया ने मुझे रूल नहीं कर रखा। यही आनंद को बनाए रखने का एक साधन है। बस इस आनंद को बनाए रखें और इस मार्ग पर मेरे सहयोगी बने और मैं आपका सहयोगी बनूं, यही मूल है। और अभी तो आध्यात्म की चर्चा आज से शुरू हुई है। अगले कई दिनों तक मैं अभी लॉस एंजलिस के आसपास कैलिफोर्निया स्टेट में रहने वाला हूं। आप लोगों से निवेदन है, ऐसे तो हम मिलते ही रहेंगे, भारत रहूंगा तब भी मिलेंगे। अब सामने आकर के मुझसे गले मिलिए और आइए मेरे पास। अब ये साधु आपको आपके सामने झुकने के लिए नहीं बुला रहा कि आओ और मेरे चरणों में बैठो ना, आओ और मुझसे गले मिलो, मेरे बराबर बैठो, मेरे पास बैठो और मित्र की भांति मुझसे प्रश्न करो, मित्र की भांति मुझसे जानो, कुछ पहचानो और कुछ मौन रह करके भी सब कुछ जानो। आप लोगों को मैं दावा करता हूं, पूछोगे तो भी मैं ही पाऊंगा, पहचानोगे तो भी मुझे ही पाओगे। और कुछ जो होशियार लोग होते हैं ना, शार्प लोग, वो मुझसे बात भी मत करना, मेरे साथ रहना। बोलने वाले साधु में और साथ में घूमने वाले साधु में अगर फर्क दिखे तो मुझे छोड़ देना। और मैं दावा कर सकता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो ही मैं इस कैमरे के पीछे भी हूं, वो ही मैं आप लोगों के साथ आपके घर में हूं, आप लोगों के साथ वॉक करते हूं, आप लोगों के साथ कार में बैठने के वक्त भी मैं वही हूं। मेरे अंदर कोई परिवर्तन आप कभी नहीं पाओगे। मैं ऐसे ही हंसता, खिलखिलाता, आनंद और उत्सव में जीने वाला साधु हूं। बस आओ, जुड़ो और सच की चर्चा प्रारंभ करो। यही हमारा उद्देश्य है। यही आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए आपके अंदर जो पात्रता, जो योग्यता, पूछते हैं ना कि आपकी योग्यता क्या है, ये योग्यता है। इस योग्यता में अगर आप हैं, ये गुण आपके अंदर हैं, ये बातें आपके अंदर हैं, तो आप आध्यात्म के मार्ग पर चलने के स्थिति में हैं। अगर ये बातें आपके जीवन में नहीं है जो मैंने आपसे बताई, तो अभी भी समय है कि पहले उसे ठीक करें। पिछली बार भी मैंने कहा था, ढोंग से बाहर निकले, झूठ की दुनिया से बाहर निकले, दुनिया को दिखाना बंद करें कि हम धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं। दुनिया को झूठ दिखाना बंद करें। मेरे सामने जैसे आप हैं वैसे आए, मुझे गले मिले, मेरे साथ बैठे, मेरे बराबर में बैठे। कोई भेद नहीं चाहिए मुझे। मेरे साथ आकर के खुल करके जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे आइए और बात करते हैं, जानते हैं। कुछ आप अपनी सुनाए, कुछ मैं अपनी सुनाऊंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं, जब हम दोनों एक दूसरे को सुनाएंगे ना, तो हमारा प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि ये जगत के ये झूठे प्रेमी है ना, इनको भी शर्म आने लगेगी कि महाराज और उनके भक्त के बीच प्रेम कितना है। इन्हीं भावों के साथ आप सबको आध्यात्म की इसी मार्ग पर चलने के लिए मैं ये शुभकामनाएं देता हूं। और आइए कुछ सवाल जवाब हो जाए। किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर मुझसे पूछें, यही मैं चाहता हूँ। राम कबीर। राम कबीर। तो अभी बहुत अच्छा आपने बताया कि यस, लेट्स बी स्पिरिचुअल, यानी क्या है कि स्पिरिचुअल के बारे में भी आप थोड़ा सा ज्यादा, अगर किसी को भी क्वेश्चन है,
કોઈને પણ કઈ ક્વેશ્ચન હોય હજી કે કોમેન્ટ્સ હોય, આજે કોમેન્ટ્સ કરતા આજે ક્વેશ્ચન વધારે મહત્વ રહેશે. તો કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ. ગુરુજી જોડે વાત કરી શકે છે. અને લોસ એન્જલિસમાં રહી છે અત્યારે, એટલે કે તો તમે જો સાઉથર્ન કેલિફોર્નિયામાં, તો તમને જો કોઈને પણ કંઈક મળવાનો એમનો ઉદ્દેશ્ય હોય, ફીલ ફ્રી ટુ કોલ અસ. પ્રીતિ બેનને પણ બેનિંગ તમે કોલ કરી શકો છો, અને મુકેશભાઈ બેનિંગ એમને પણ કોલ કરી શકો છો, અને તમે એમને મળી શકો છો, એમની જોડે વાત પણ કરી શકો છો. અને એમના જે પ્રોગ્રામ છે અત્યારે, કોઈનો ક્વેશ્ચન નથી, ક્વેશ્ચન આવે એ પહેલા હું એમના જે પ્રોગ્રામ અહીં છે લોસ એન્જલિસમાં, એમના વિશે હું તમને થોડી વાતો કરી જાઉં. કે એમના પ્રોગ્રામમાં આપણે આજે સાંજના એ ગિરીશભાઈ અને ભાવનાબેન દેસાઈને ત્યાંથી એઓ મીરાબાઈ ની પર પ્રવચન કરવાના છે, અને એ ફેસબુક લાઈવ આવવાનું છે. સો તમે ફેસબુક લાઈવ પર, જો ફેસબુક પર હો તો તમે ગિરીશભાઈ, ક્યાં જીતુભાઈ, ક્યાં આપણા નરેશભાઈ, એમના બધાના જ એની પર ટેગ કરવામાં આવશે. તો તમે ત્યાંથી પણ જોઈ શકો છો. ક્યાં તમારે હજી પણ તમને નહીં મળી શકે તો ફીલ ફ્રી ટુ ગીવ અસ કોલ. આપણે એ પ્રમાણે એની વ્યવસ્થા કરીશું. અને ફેસબુક લાઈવ આજે અમારા પેસિફિક ટાઈમ પ્રમાણે 3 PM ચાલુ કરવાના છે. સો બી કેરફુલ, બી રેડી ટુ વોચ, અને આ તમે એને માણી શકો છો. ત્યારબાદ મે 28 ઓમ સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્ટર હેમેટ કેલિફોર્નિયાથી આવશે. પ્રોબેબલી અમે ત્યાંથી ફેસબુક કે એવું લાઈવ નહીં કરી શકીશું, પરંતુ અમે બનતા પ્રયત્ન કરી એ જે પ્રવચન હશે એને તમારી સમક્ષ કબીર વિઝડમમાં લાવવા મોટા ભાગે પ્રયત્ન કરીશું. ત્યાર પછી છે મે 21 ના પણ પ્રોગ્રામ છે, મે 23 ના પ્રોગ્રામ છે. મે 24 આપણું શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ સાઉથર્ન કેલિફોર્નિયાનું જે આપણું સેન્ટર છે નોર્વોકની અંદર, એ નોર્વોક કેલિફોર્નિયામાં આપણે બહુ સુંદર સેશન, તેનો પણ સબ્જેક્ટ બહુ સુંદર રાખવામાં આવ્યો છે કે કબીરજી વિશેનો સબ્જેક્ટ છે. અને એમાં કબીરજી આપણને રોજબરોજની જીવનમાં ક્યાં ક્યાં મદદ કરે છે, કેવી રીતે આપણને પ્રોત્સાહન આપે છે, કેવી રીતે આપણને નોલેજ આપે છે, એના વિશે બહુ સુંદર પ્રવચન જે ગુરુજી આપણને શીખવશે કે ભાઈ કેવી રીતે કબીરજી આપણા જીવનમાં આપણને દરરોજના કાર્યમાં કેવી રીતે આપણને હેલ્પ કરે છે તે. ત્યારબાદ મે 25 ના પણ પ્રોગ્રામ છે એમનો. મે 26 ના પાછું આપણે કબીર વિઝડમ પર આપણે ઝૂમ લાઈવ કરીશું આપણે સવારના, કારણ કે મે 26 ઇઝ અ સન્ડે. અને મે 26 ના સાંજના about 4 to 6 વિટિયર સાઉથર્ન કેલિફોર્નિયાની અંદર ધ ડિવાઇન આર્ટ ઓફ યોગા સેન્ટર જે વિટિયર કેલિફોર્નિયામાં છે, ત્યાં પણ યોગા વિશેનું બહુ સુંદર સેશન છે. જો સમય મળે આ જગ્યાએ તમે જોડાઈ શકો છો. બાદમાં જૂન 1 અને જૂન 2 કબીર વિઝડમ પ્રેઝન્ટેશન ઇન ધ મોર્નિંગ છે, અને આપણે એના સાંજના જૂન 2 આપણે છે શ્રી રામ કબીર મંદિર કાર્સનમાં એમનું સેશન છે. વચ્ચે મેં તમને કહ્યું તે પ્રમાણે કોઈ પણ જગ્યા તમે એમને મળી શકો છો. કદાચ પ્રાઇવેટ ઇવેન્ટ હોય માટે અમે તમને ત્યાં નહીં બોલાવી શકીએ, પરંતુ અમે ત્યાં જે અપાયેલા પ્રવચનો છે એનો બનતા પ્રયત્ન કરી તમારી સમક્ષ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. હવે કોઈ ક્વેશ્ચન કોમેન્ટ્સ હોય તો તે પ્રમાણે તમે રેઝ કરજો. હવે ગુરુજી, જો તમે સ્પિરિચ્યુઅલ અને તમારી જે આ યાત્રામાં તમે જે સ્પિરિચ્યુઅલ ને પર જે ફાઉન્ડેશન તૈયાર કરવાના છો, કે સ્ટેક જે માળ, એક બીજો માળ, ત્રીજો માળ, ચોથો માળ અમારા માટે, તો એના માટે થોડી हाइलाइट्स આપી જાવ તો સારું પડશે. बिल्कुल। पिछली बार जहां हमने ये मुद्दा छोड़ा था, हमें उससे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। पिछली बार मैंने आप लोगों से जो जो निवेदन किया था, मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि मैंने पिछली बार आप सभी से कहा था कि हमें अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलना होगा। पहली आदत, जगत के सामने धर्म का दूसरा मुखौटा पहनना बंद करिए। मेरे सामने भी आते हैं तो सिर्फ आध्यात्म का चेहरा, धार्मिक चेहरा कि देखो हम कितने धार्मिक है महाराज, हमारा परिवार कितना धार्मिक है, मेरे बच्चे कितने धार्मिक है, ये झूठ मत दिखाओ। जैसे हैं वैसे आओ।
ये शुरुआत आप लोगों ने करनी है, और ये इसलिए भी करनी है कि डॉक्टर को पता चलना चाहिए कि मरीज कितना बीमार है। डॉक्टर को आप सिर्फ दिखाओगे कि हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर में सब बढ़िया है, देखो हमारा बच्चा, हमारे बच्चियां धर्म के श्लोक गा रही हैं, गीता के श्लोक गा रही हैं, कबीर साहब की साखियां गा रही है, पद गा रहे हैं। जैसा आप एक्चुअल में हैं वैसा दिखाओ। वो सब तो है ही, जो आप अच्छा कर रहे हैं उसके लिए तो मेरा आशीर्वाद है, लेकिन जो वास्तविकता है वो ला कर दो, पहला। दूसरा, मैंने आपसे निवेदन किया था छोटी छोटी चीजें बदलनी। हमारी कथा, हमारा सत्संग, हमारा प्रवचन, ठीक है, आप में क्षमता है, आप सबका सेवा कर सकते हैं, सबकी आवभगत कर सकते हैं, सबके घर पर बुला सकते हैं, घर पर सबको जलपान करा सकते हैं, भोजन करवा सकते हैं, कराइए। लेकिन हमें ऐसी किसी जगह पर कोई प्रोग्राम नहीं करना जहां पर यह डिमांड रखी जाए कि स्वामी जी महाराज पधारे तो मंदिर को भोजन कराना पड़ेगा, मंदिर में आना पड़ेगा। नहीं, इसका धर्म से और आध्यात्म से कोई लेना देना। आप लोग मुझे अपने घर बुलाएं, कोई भी अपने घर बुलाएगा, मैंने पहले भी कहा था, पिछली बार, इस बार भी कहता हूं, उन्हें अपने घर पर किसी प्रकार का भोजन रखने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ईश्वर ने आपको दिया है, आपके मन में प्रेम है कि हमें रखना है, तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन यह नेसेसरी नहीं है और कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। और आप लोग भी इस उद्देश्य से किसी भी कथा सत्संग में नहीं जाएंगे, ये पहली आदत अपने अंदर बदलो। मेरे कार्यक्रम में तो बिल्कुल नहीं। इस बार हमने कोशिश की कि हम ऐसे किसी मंदिर में, किसी मठ में, किसी कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं जहां पर हमें भोजन रखना पड़े, जहां पर डोनेशन देना पड़े। नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूं, तो आप लोग भी फ्री रहिए। और हमें ऐसे स्थानों से हमें हमें नहीं, मेरे को डील नहीं करनी। आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा, सत्संग किसी प्रकार की जगत की व्यवस्थाओं में बंधा हुआ नहीं होता है। दूसरी आदत, तीसरी आदत, आप पेन और कॉपी लेकर के हर विषय को नोट करेंगे। आज का नोट डाउन करने वाले क्या है? आध्यात्म की शुरुआत आनंद से ही होती है और आध्यात्म का लक्ष्य आनंद ही है। ये हमारा आज की टैगलाइन है। इसको जब आप पढ़ोगे, आपको याद आ जाएगा कि अभयदास जी महाराज ने, बापू ने हमको क्या क्या सुनाया था। तो आज की टैगलाइन लिखो। फ्यूचर में भी मेरे किसी प्रोग्राम में आप आज आते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं, हर दिन पेन कॉपी लेकर के लिखो। दूसरा, अपने सवाल पूछ सकते हो, हिम्मत है आप में माइक पे पूछने की तो पूछिएगा मेरे सामने बैठकर, और हिम्मत नहीं है तो एक कागज में लिख करके ले आइए। तीसरा, चौथा, जो जो कहा जा रहा है उस पर आरंभ करिए। पहले भी मैंने कहा था, आज भी कहता हूं, आध्यात्म की स्थिति को प्राप्त करना है, सबसे पहले आसन को सिद्ध करना होगा। हमें बैठना आना चाहिए। जब हमें बैठना ही नहीं आता तो हम कैसे आगे की यात्रा को प्रारंभ करें? तो अपने शरीर को आदत डालिए, स्वयं की आदत डालिए, बैठना सीखिए, सुनने की आदत डालिए, सुनना सीखिए, मौन रहने की आदत डालिए, मौन रहना सीखिए, और जो कहा जा रहा है उस पर वापस कार्य करने की आदत डालिए, उसे करना सीखिए। सुन करके कपड़े झटकते हैं ना, जब मेरे प्रवचन को सुनने के बाद लोगों की आदत होती है, खड़े होते हैं तो थोड़ा कपड़ा झटक के फिर जाते हैं, वैसे ही सारा ज्ञान झटक के मत चले जाना। आए हो तो कपड़ों के साथ साथ ज्ञान मत झटक देना। मेरे ज्ञान को अपने कपड़े में बांध करके, गांठ बांध कर लेके जाना। कही भी बात को, मेरे अनुभवों को अपने घर ले जाना और घर ले जाकर उस पर अमल करना, ये बहुत आवश्यक है। मैं आपको एक छोटी सी बात कह के उदाहरण के साथ देता हूँ। कितने लोग हैं जिसने गाय को, भैंस को भोजन प्रसाद करते हुए देखा है? गाय जब खाना खाती है, कोई भी पशु जब खाना खाते हैं, जीव जब खाना खाते हैं, मनुष्य के अलावा, तो वो खाना खाने के बाद में भी आपने देखा होगा उनका मुंह चलता रहता है, जिसे हम गुजराती में क्या कहते हैं, हिंदी में या राजस्थानी में तो जुगाली कहते हैं। ચાવવાનું કહીએ છીએ। हाँ, चावनो। तो वो खाना तो खा लिया, लेकिन उसके बाद भी खाए हुए को वापस थोड़ा 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 मुंह में लेके चबाते हैं। वो अंदर रखा हुआ खाना वापस चबाना है। अर्थात आप मेरे पास आते हो, सारा पेट में भर के फुल होके जाते हो, लेकिन घर जाकर के बैठे बैठे उस ज्ञान को वापस अपने मस्तिष्क में लाके उसको
मंथन करने की आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी है। तो ये आप करेंगे तो ही आप हर दिन इम्प्रूव कर पाएंगे। ये वैसा ही है जैसा क्लास में बच्चों को पढ़ाया और घर आकर के होमवर्क किया बच्चों ने, वैसे ही जो जो चर्चा आप मेरे सामने बैठ करके उस प्रोग्राम में करते हैं, उसे घर आकर के उस जवाब को, उस उत्तर को वापस होमवर्क भी करना है। होमवर्क नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं आएगा। ये छोटे छोटे नियम हैं जिसे हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा में हम आध्यात्म के बहुत करीब अपने आप को महसूस करते हैं। और मैं और पहले से आपको बता दूं हिम भाई और सभी दर्शकों को, मैं किसी की गुरु परंपरा, किसी की आध्यात्म परंपरा, किसी की धर्म संप्रदाय की परंपरा, उसको खंडन करने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। कोई दादा भगवान को मानते हैं, कोई कबीर साहब को मानते हैं, कोई माँ शक्ति को मानते हैं, कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई शिव को। आप जिसे भी मानते हैं बिल्कुल माने और मुझसे बताएं, खुल के बताएं कि हमारे मन में श्रद्धा है उनके प्रति। मैं आप लोगों को लिख करके देता हूँ। मैं आपके मार्ग को आप ही के रास्ते से बढ़ाने की कोशिश करूंगा, न कि किसी को इरेज करके, किसी को हटा के नया मार्ग दूंगा। नहीं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। किसी की श्रद्धा तोड़ना हमारा काम नहीं, और सिर्फ ये कहना कि जो मैं कह रहा हूं यही अटल सत्य है, यह भी मेरा कार्य नहीं। दादा भगवान हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे मीरा माँ हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे सर्वेश्वरी माँ का परंपरा हो, सभी मेरी ही तरह आध्यात्म के मार्ग पर चलाने के उद्देश्य से ही आपके जीवन में आए हैं। इससे बाहर किसी का कोई उद्देश्य नहीं है। और खबरदार, कोई दिमाग में ये सोचे कि मेरे गुरु या मेरी परंपरा ही सबसे ऊंची है, इस भेद को कोई प्रकट नहीं करेगा। सब बराबर है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, हम सब एक मार्ग के सहयोगी हैं। सबका सम्मान करो और स्वयं को कभी भी ऊंचा, धार्मिक ऊंचा, आध्यात्मिक में ऊंचा बताने का द्रोह कभी मत करना। जो ये करता है वो समझ ले कि वो अंतिम पंक्ति में है। वो आध्यात्मिक तो छोड़ो, वो धार्मिक भी नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि में वो धर्म का सबसे बड़ा विरोधी है, जो स्वयं को ऊंचा दिखाता है, जो अपने गुरु की परंपरा को ऊंचा दिखाता है। जब आपके गुरु ने कभी ऐसा नहीं किया तो आप कौन होते हैं ऐसा करने वाले? कबीर साहब ने भी कभी किसी ऋषि, किसी मुनि, किसी ईश्वरीय तत्व का विरोध नहीं किया। कभी तुलसीदास जी ने नहीं किया, कभी मीरा ने नहीं किया, कभी रामानंद जी ने नहीं किया, कभी अष्टानंद जी ने नहीं किया, कभी संत तुकाराम ने नहीं किया, संत ज्ञानेश्वर ने कभी नहीं किया, नामदेव ने कभी नहीं किया, भक्त नरसिंह मेहता ने कभी नहीं किया। तो हम और आप कौन होते हैं करने वाले? तो मेरे से कभी अपेक्षा मत करना, और ना मेरी जाति, मेरा पंथ, मेरा संप्रदाय जानने की कोशिश करना। मुझे जानने की कोशिश करें, मैं कौन हूं इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं साधु हूं, ये पर्याप्त है। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। तो आप मेरे ख्याल से दया का कुछ क्वेश्चन करने वाले थे बस, तो अभी अगर स्क्रीन पे देख सकते हो आप लोग तो मुझे। ओके प्रफुल्ल भाई, तुम्हारी पास क्वेश्चन होता, सो लेट मी पुट यू इन माय स्क्रीन। साहेब बन गई अभयदास हाँ, जी साहब, हम कबीर। आपकी बात सुन के हम भी युवान थे, कैसे थे वो याद आ जाता था। क्योंकि साधु लोग तो थोड़े उम्र वाले होते हैं, ऐसा हमारे यहाँ प्रचलित था। आप तो बहुत युवान है। सो युवानों को आप सही मार्गदर्शन आपकी यात्रा में भी दो, क्योंकि हमारे भक्त युवान लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं ये कबीर विजडम सेशन पे। प्रफुल्ल भाई, वेलकम एक टू। छोटा सा रिक्वेस्ट है कि युवाओं का एक कार्यक्रम रख दिया जाए एक दिन का। आप लोग इस पे थोड़ा विचार करें। उसमें आप लोग ना हो, अंडर 40 के सारे लोग हो, अंडर 40 और 18+, 18 to 40 का एक ग्रुप बना के एक बार मुझे बिठाने की कोशिश करिए। एक बार बिठाइए तो सही, आई प्रॉमिस आपका ये कंप्लेन नहीं आएगी आगे से। कबीर विजडम टीम के जो सदस्य हैं सब प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल और दूसरा एक सवाल है मेरे को जी।
आप भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जो विश्व हिंदू परिषद विश्व का जो रिलीजियन कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट, वर्ल्ड रिलीजियन पार्लियामेंट, तो ये स्पिरिचुअल लेवल पर आपने कैसे भारत को रिप्रेजेंट किया, उसका कुछ थोड़ी बात जो आपके पास समय है तो करो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भक्त लोग जानना मांगते हैं कि भाई हमारा भारत अभी भी ऐसा ही है जो पुरातन काल का था, ऋषि मुनियों का देश। जी, इसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट का आयोजन इसी उद्देश्य से होता है कि उसमें पूरे विश्व के धर्म गुरु धर्म की कौन सी प्रक्रियाओं के माध्यम से किस किस तरह से धर्म को वो लोग चला रहे हैं, आध्यात्म को प्राप्त करने के कितने प्रकार के मार्ग हैं, कितने प्रकार के तरीके हैं, सबका अपना यूनिक तरीका है। हमारे स्वभाव के अनुरूप हमें जिस तरीके को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, हमें लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, जबकि रास्ते सारे बेस्ट हैं, रास्ते सारे अच्छे हैं, लेकिन इंसान का, मनुष्य का स्वभाव जो है वो भांति भांति का होता है। राजू भाई का अलग होगा, प्रफुल्ल भाई का अलग होगा, दीपक भाई का अलग होगा, हेमंत भाई का अलग होगा, बीना बहन, प्रीति बहन, मेरा, मुकेश भाई, सबका अलग। हमें हमारे स्वभाव के अनुरूप जो रास्ता ठीक लगता है, हमें लगता है वो सबसे बेस्ट है। ये मनुष्य के अंदर है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सब बेस्ट ही है, कोई खराब नहीं है। अलग अलग स्वभाव के अनुरूप सबको अपने अपने रास्ते चयन करने का फ्रीडम होता है। तो वहां वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट पे पूरी दुनिया के आध्यात्मिक मार्ग को जानने का प्लेटफॉर्म है, जहां पे एक ही जगह पर हमें सभी लोगों के मार्ग देखने के अवसर मिलता है। काउंटर लगे होते हैं, सभी के अपने अपने फ्लायर होते हैं, सबकी अपनी अपनी बुक्स होती हैं, सबके आध्यात्म को, पूजा को, अर्चना का सबका प्रोसेस जानने को मिलता है। और वहां पर जो अलग अलग प्लेनरी फोरम होते हैं, अलग अलग स्टेज होते हैं, अलग अलग कक्ष में अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग प्रेजेंटेशन होती है, लोग उस सूची को फॉलो करके उस प्रोग्राम में पहुंचते हैं। मैंने भारत देश का प्रतिनिधित्व किया था, इस बार ये बताया कि पिछले 50 साल से वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट हो, चाहे यूनाइटेड नेशन का हर साल होने वाला ईयरली जनरल कन्वेंशन जो प्रोग्राम होता है वो हो, इन सब में एक बात हर बार उठाई जाती है कि विश्व के आदिवासी समुदाय को मूल धारा में कैसे लाया जाए। जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनको आधुनिक दुनिया के साथ कैसे जोड़ा जाए, इस पर यूनाइटेड नेशन भी काम कर रहा है और वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट भी पिछले 50-100 सालों से काम कर रही है। आज तक इस पर बड़ी सफलता किसी को नहीं मिली। इस बार मेरे मन में था, जिस मुद्दे पर कोई सफलता आज तक नहीं मिली, इस बार मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। तो पिछले साल अगस्त में मेरे उद्बोधन में मैंने वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में इस बात को रखा था कि भारत देश हमेशा से वनवासी आदिवासी समुदाय के साथ बिल्कुल जुड़ करके रहा। भगवान राम की निखाद राज के साथ भेंट और निखाद राज का अपने राजा के लिए समर्पण, अपने राजा को निशुल्क यात्रा करवाना, नदी पार करवाना, और राम ने वनवास के दौरान पूरे 14 वर्ष में अधिकतर समय आदिवासियों के साथ बिताया, बिना इस भेद के कि वो राजा हैं और वो आदिवासी जंगल में रहने वाले हैं। इवन राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था, तब आदिवासी जाति के हमारे निखाद राज को लगा कि मैं इस राजभवन में क्या कर रहा हूं, तब उस निखाद राज को कंफर्ट फील कराने के लिए भगवान राम उसे गले लगाकर अपनी राज्यसभा में सिंहासन देते। अर्थात हमारे देश में आदिवासी होना, ट्राइबल होना, दलित होना कभी छोटी बात नहीं होती थी। इसका मतलब वो एक व्यवस्था का हिस्सा था। हमारे यहाँ पर देश के माननीय प्रधानमंत्री ने आदिवासियों को समृद्ध करने के लिए देश की राष्ट्रपति पहली बार महिला बनी, और महिला भी कौन सी, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। पूरे विश्व को संदेश देने के लिए कि भारत नए तरीके से सोचना शुरू कर दिया। अब भारत जो आप लोग सोचते हैं या जिस तरह की विचारधारा इस देश में थोपी गई थी 150 सालों के अंग्रेजों के शासन के दौरान,
अब भारत वैसा नहीं है। मैं आप लोगों को आज इस वेबिनार के माध्यम से बता दूं, भारत की शिक्षा व्यवस्था को पूरा पूरा खत्म करने के लिए 1835 के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर लॉर्ड मैकाले, उसने एक प्रस्ताव लाया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कि भारत कभी टूट नहीं सकता, भारत कभी खंडित नहीं हो सकता, भारत के दलित आदिवासी कभी धर्म को परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के अंदर एक गुरुकुल नाम की व्यवस्था है जिसके अंदर आदिवासियों से लेके, दलित से लेके, सवर्ण से लेकर, वैश्य से लेकर, क्षत्रिय से लेकर चारों के चारों वर्ण एक साथ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव आया, वो प्रस्ताव का नाम था कि हमें इस देश में एजुकेशन की पॉलिसी को बदलना होगा, तभी हम भारत में राज कर सकते हैं। 1836 में लॉर्ड मैकाले कैलकाटा के अंदर बैठ करके अपने पिताश्री को एक लेटर लिख करके भेजता है कि पिताजी, हमने एक इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल कलकत्ता के अंदर खड़ा किया जिसमें 1800 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, और मैं आपको बड़ी खुशी के साथ ये बात बता रहा हूं पिताजी, अब भारतीय लोग इंग्लिश को और अंग्रेजी कल्चर को अपनी फैशन मानना शुरू कर दिए हैं। 1836 लॉर्ड मैकाले का लिखा हुआ अपने पिता को पत्र लॉर्ड मैकाले की जीवनी में आज भी अंकित है, जिसमें वो साफ साफ लिख रहा है कि पिताजी, मुझे सफलता मिली है, मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदल दूंगा और भारत के अंदर 4 टुकड़ों में धर्म को बांट दूंगा, क्षत्रिय को ऊंचा दिखाऊंगा, ब्राह्मणों को ऊंचा दिखाऊंगा, दलित को नीचा दिखाऊंगा, वैश्यों को अलग दिखाऊंगा और भारत को तोड़ दूंगा। ये SC, ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, OBC, जनरल, ये सब डिवाइड करने की जो पॉलिसी है, ये किसने लाई? इन लोगों ने लाई, भारत को तोड़ने के लिए। तो आदिवासी मेरे देश की ताकत है, वनवासी इस देश का मूल हिस्सा है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने विश्व धर्म संसद का उपयोग किया और वहां पर धर्म की चर्चा करके मैंने बताया कि मेरा देश आदिवासी वनवासी जातियों के लिए कार्य कर रहा है। हमने तो राष्ट्रपति बनाया, आप लोगों ने बात करने के अलावा और क्या किया आदिवासियों के लिए? इसलिए आरक्षण देना या कुछ सुविधाएं देना, रिजर्वेशन देना या कुछ सुविधाएं देने से आदिवासी जनजाति मूल धारा में नहीं आएगी। उन्हें हमें अपनाना होगा, गले लगाना होगा, जोड़ना होगा और फ्रंट लाइन में लाना होगा। तो ये कार्य हमने वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में किया और मेरे पास बहुत सारे फैक्ट हैं, आप लोग चाहें तो मेरे से सबूत मांग सकते हैं। लॉर्ड मैकाले ने कब कब इस देश को तोड़ा, हमारी एजुकेशन पॉलिसी को तोड़ा, और उसी के कारण प्रफुल्ल भाई, राजू भाई, दीपक भाई, हेमंत भाई, या तो आप लोग या आपके पिताजी लोग तकलीफ पाए कि एजुकेशन के पॉलिसी को बदल दिया गया, सिस्टम बदल गया, आपके दादा परदादा तकलीफ में पाए, इसलिए उन्होंने शायद वहां की एजुकेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया। कई हिंदुओं ने पढ़ाई करना ही छोड़ दिया क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी ही चेंज हो गई। इसलिए भारत में 50-100 वर्ष का एक कालखंड ऐसा आया जिसमें बड़े लोगों ने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ा करते थे और उन्होंने देखा कि गुरुकुल बंद होकर के बिल्कुल स्कूल आ गए हैं। स्कूल का मतलब क्या है? ईश कुल, ईसा कुल, जीसस का कुल, न कि गुरु का कुल। समझ गए? गुरुकुल से इस कुल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, गुरुकुल से ईश कुल बना दिया उन्होंने, जीसस कुल बना दिया। और जीसस कुल का मतलब है सिर्फ और सिर्फ भारत देश को तोड़ने की व्यवस्था और कुछ भी नहीं। थैंक यू અભયદાસ જી સાહેબ. થેન્ક યુ પ્રફુલભાઈ. કઈ બીજું પૂછવાના છે તમે પ્રફુલભાઈ? नहीं बस. ओके, हाँ, तो बहुत आपने बहुत अच्छा और वो प्रूफ के साथ बताया, वही कि जिसे हम चाहते थे कि नहीं आप कुछ, अगर आप किसी और को कोई क्वेश्चन हो, वरना हमारे पास अभी 5 मिनट्स है, तो 5 मिनट में आप अगर आप कुछ दया काका फिर से आ गए तो मैं उसको स्क्रीन पर लाता हूँ।
કાકા રામ કબીર તમે ક્વેશ્ચન પૂછો. સાહેબ રામ કબીર સંભળાય છે સાહેબ? राम कबीर साहेब, हाँ साहेब, थैंक यू वेरी मच साहेब. साहेब क्वेश्चन कोई नहीं है, लेकिन आपने जो बात किया, आनंद की बात की साहेब ने, तो कबीर साहब का 2 भजन में आनंद के लिए बहुत महिमा गाया है साहेब ने. जब से दया भई सदगुरु की, अब हम आनंद को घर पायो रे, अब हम आनंद को घर पायो. जब से दया भई सदगुरु की, अभय निशान बजायो साहेब, आपका नाम आ गया अभय निशान बजायो साहेब. और दूसरा भजन में कोई साहब आनंद के लिए कहते हैं कि कहत कबीर सहज अति रहनी, सो परगट कर गाई, सुख दुख से कोई पर परम पद, सो पद है सुखदाई रे संतो. सहज साहेब, यही 2 बात करने के लिए मैंने आपको बॉदर किया है साहब, मुझे माफ करना. बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा प्रमाण देने के लिए. કારણ કે દયા કાકા ઓલવેઝ આપણા માટે સુંદર શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન લઈને જ આવે છે. સો થેન્ક યુ દયા साहब, मैं तो हथौड़ा छाप साहेब, मैं हथौड़ा छाप हूँ, मेरे में कुछ भी नहीं है साहब. थैंक यू दया काका. आप सबकी दया है, यही मेरे लिए काफी है साहब. थैंक यू वेरी मच साहब, मुझे माफ करना. थैंक यू. हाँ दीपकભાઈ, તમે અનમ્યુટ કરીને બોલો. અનમ્યુટ છો. રામ કબીર સૌ ને. राम कबीर दी. अच्छा, अभयदास जी, हमारा थोड़ा I'll give my background थोड़ा सा. I'm trained scientist and जब मुझे यूएस में पढ़ाई किया था तभी कितना साइंटिस्ट लोग से बात हुआ था. एक यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, शायद दिखेगा कि नहीं पता नहीं, डॉक्टर चंद्रा. सो इसका स्टोरी ऐसा एक बोला कि मेरा जो नॉलेज है उससे भारतीय संस्कृति को कहीं तरह से भी नुकसान नहीं होना चाहिए. ये हम जब बात करेगा कोई तो हमें ध्यान रखना है. उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ कौन है. जब भारत देश आजाद हुआ तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वो पूरी दुनिया में घूमने निकले कि कहाँ कहाँ इंडियन लोग काम कर रहे हैं. तो इसको लेके इंडिया लेके गए थे और उसने एटॉमिक एनर्जी के लिए डेवलपमेंट का काम किया भारत देश के लिए. कुछ हो गया तो वापिस आ गए, पर मेरे पीछे खड़े रह गए और एक कंडीशन लगाई थी कि वो मेरे साथ नाम जुड़ेंगे अगर मैं भारत देश को किसी भी तरह से कुछ भी नुकसान न होना चाहिए, स्पेशली संस्कृति के बारे में और ऋषि मुनि वगैरह के बारे में जो कल्चर होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से बात किया था हमारे साथ. अभी कभी फ्यूचर में होगा मुलाकात तो डीप में जाएंगे क्योंकि हमारा समय भी खत्म हो रहा है. राम कबीर. वेरी गुड दीपक भाई. वेरी गुड दीपक भाई. आपने और फिर भी जो आपने बताया वो सब वो पॉइंट ना, आप गुरुजी से बात कर सकते हो, हमारे से नंबर ले लेना आप, और गुरुजी से डायरेक्टली भी बात कर सकते हो आप, और जब भी घर मिल ना पाए तो मिल भी सकते हो आप. थैंक यू दीपक भाई. गुरुजी, आज तो अभी कभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है वैसे और कमेंट्स भी नहीं है, तो आज ऐसा करते हैं, आपकी मुख से ही शांति प्रार्थना जो हम अंत में करते हैं वही आपके मुख से ही सुनेंगे आज. और अभी फिर से मैं एक दफा सभी को याद दिला दूं कि आज 3 बजे हमारे पैसिफिक टाइम, सेंट्रल टाइम अबाउट 5 PM फेसबुक लाइव गुरुजी का प्रवचन है, जहाँ पे आप फेसबुक लाइव एंजॉय कर सकते हैं. और वो स्पॉन्सर्ड बाय और जिसके होस्ट, उसका प्रोग्राम का होस्ट है वो भावना बेन एंड गिरीश भाई देसाई, कोरोना कैलिफोर्निया से. तो सभी को जुड़ना है. और जैसे अभी अभयदास जी हमारे साथ है 3 वीक, नेक्स्ट वीक भी और इसके बाद भी, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लिख के भिजवा सकते हो. आप कबीर विजडम टीम का कांटेक्ट करके किसी को भी बता सकते हो. आप प्रीति बेन और मुकेश भाई भक्त जो बेनिंग कैलिफोर्निया में है
उसको भी कांटेक्ट करके उसको भी क्वेश्चन पहुंचा सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा गुरु जैसे अभयदास जी हमें सभी हर दफा बताते हैं कि आप डायरेक्टली आओ, डायरेक्टली पूछो। अपना डायरेक्ट कनेक्शन से आपका दिल भी थोड़ा सा लाइट होगा, अच्छा रहेगा। और जो आज का पॉइंट है वो आनंद, बॉटम लाइन आनंद सभी में रहेगा। तो आप भी पूछ सकते हो। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर भी गुरु जी की प्रार्थना के बाद। तो प्रार्थना आपको है कि आप प्रार्थना आदेश सुनाए। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।